मुसलसिल काविशों से ही तो तकदीर संवरती है, मुसलसिल काविशों से ही तो तकदीर संवरती है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका अपना मुस्तहसीन सर और आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 6 और उसकी प्रैक्टिस सेट 6.1 जिसके कुछ सवालात और उसके जवाबात हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसको पार्ट 2 में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और जिसने नहीं देखा है तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर उसको चेक कर लें। पार्ट 1 की भी जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे देख लेना अच्छे से और फॉर्मूलेज अच्छा याद कर लेना, ताकि आपको ये जो सवालात अब जो हम करने जा रहे हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये समझने में आसानी होगी। और लास्ट में एक सरप्राइज टेक्निक मैं बताने की कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर होने के बाद, कि किस तरह से इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से जहन नशीन कर लें। इसकी एक टेक्निक है, एक सॉल्यूशन है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस सवाल की ओर, जो चौथा सवाल है। लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 4, इन द ब्रैकेट sec थीटा माइनस cos थीटा, सेकेंड ब्रैकेट cot थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज इक्वल टू tan theta into sec theta. We have to prove that left hand side is equal to right hand side. How it is? See here. For that, okay, now we have to prove what we have to prove. This sec theta minus cos theta into cot theta plus tan theta is equal to tan theta into sec theta. First we take left hand side, that is this part, sec theta minus cos theta and into cot theta plus tan theta. So first we take left hand side, this sec theta minus cos theta and cot theta plus tan theta here. Then we convert sec theta into 1 upon cos theta in the next step, minus cos theta. In the second bracket, cot theta is converted into cos theta upon sin theta plus tan theta is converted into sin theta upon cos theta, where we see that sec theta is equal to 1 upon cos theta, comma cot theta is equal to sin theta upon cos theta upon sin theta, and tan theta is equal to sin theta upon cos theta. These are formulas. These are nothing but formulas. Sec theta is equal to 1 upon cos theta, and cot theta is equal to cos theta upon sin theta, and tan theta is equal to sin theta upon cos theta. These are three formulas. We substitute. For this cot theta we put the value of cot theta, cos theta is upon sin theta, and for tan theta we put sin theta upon cos theta. So we get these step instead of this. We replace cot theta by sin theta, cos theta upon sin theta, and tan theta by sin theta upon cos theta. These are two different formulas and we mention here. Okay, now in the next step this become, that is 1 upon cos theta upon 1, means cross multiplication. We do cross multiplication. 1 1s are 1, that is we take 1 here, minus cos into cos, cos square theta. So this step comes whole divided by cos theta into 1, that is equal to cos theta. Okay, so this bracket how it's come, see here. Now second bracket, so that is cos theta upon sin theta plus sin theta upon cos theta. So we do again here cross multiplication. Cos theta into cos theta is nothing but cos square theta, plus sin as it is we have to put, and sin theta into sin theta, that it gives sin square theta, whole divided by sin theta into cos theta, that is sin theta into cos theta as it is. Now 1 minus cos square theta is nothing but sin square theta. So we write here sin theta, divided by cos theta, we put cos theta as it is, multiplied by cos square theta plus sin square theta is nothing but 1. Its value is equal to 1. So we write here 1. In the next step, whole divided by sin theta into cos theta. Why? Because sin square theta plus cos square theta, here it is
see here the formula sin square theta plus cos square theta that is equal to 1. Therefore sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So instead of 1 minus cos square theta we wrote here sin square theta. Okay, now again cos square theta plus sin square theta that is equal to 1, so we write here 1. So instead of this we write 1 here. So sin square theta upon cos theta that is equal to, how it comes, see here, sin square theta upon cos theta into 1 upon sin theta into cos theta. So sin theta in the denominator and sin square, one sin theta get cancelled. The same terms in the numerator and denominator get cancelled. So from sin square theta we get only sin theta here upon cos theta as it is into 1 upon cos theta. So sin theta upon cos theta is nothing but what? Tan theta. So in the next step we get tan theta here into 1 upon cos theta is nothing but sec theta. So what it is? This is the right hand side of our main question given here. So we say that this is the right hand side. So left hand side is equal to right hand side. Therefore we mention here left hand side is equal to right hand side. Therefore sec theta minus cos theta into cot theta plus tan theta, okay, is equal to tan theta into sec theta. Hence it is proved. तो ये कैसे आया, कुछ समझ में आया? तो इसके स्टेप इस तरह से वापस से बता रहा हूं, फिर से एक बार ध्यान दें, अच्छे से कोशिश करें समझने की। देखो पहले ब्रैकेट में दिया गया है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा दैट इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये हमको प्रूव करना है कि ये ब्रैकेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू होता है टैन थीटा इंटू सेक थीटा। ये हमको प्रूव करना है। ये हमको दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर बताओ। तो कैसे बताएंगे? फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो पार्ट है उसको लेंगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में इनटू दैट इज मल्टीप्लाइड बाय दूसरा जो ब्रैकेट है उसको लेंगे, इसमें है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, तो इसको रखेंगे। ठीक है, सेक थीटा का कन्वर्शन करेंगे हम 1 अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। या फिर इसको हम रेसिप्रोकल कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सेक थीटा एंड कॉस थीटा आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में रेशो है ये। ठीक है, माइनस है तो माइनस रखो, कॉस थीटा है कॉस थीटा एज इट इज रखेंगे हम कॉस थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट को हम इस तरह से रखेंगे। और दूसरी ब्रैकेट जो होती है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, जिसको मैं बताया था इससे पहले भी, और बारहा मेरा कहना यही है कि आपको अगर ये सब सिचुएशन समझना है, इस तरह के मैथ को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। तो पार्ट फर्स्ट की जो पहली वीडियो है इसको अच्छे से देखो, उसमें फॉर्मूलेज बताए गए हैं। आई थिंक 32 कुछ फॉर्मूले होते हैं वो, जिस फॉर्मूले में से आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने होते हैं 32 फॉर्मूले में से। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू की जगह पर हम इंस्टेड ऑफ कॉट थीटा वी पुट हियर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा की जगह पर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखेंगे। समझा यहाँ तक? क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। तो रेफरेंस हमको देना पड़ता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड अगेन टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमने रेफरेंस यहाँ पर दे दिया, ये क्लियर हो गया। तो वेरी फर्स्ट हमको क्या करना है? दोनों ब्रैकेट लेना है, दोनों ब्रैकेट में सेक थीटा की जगह पर क्या रखना है वो रखना है, कॉस थीटा को जैसे कि वैसा रखेंगे, यही लॉजिक है। ठीक है, फिर कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, कॉट थीटा को रिप्लेस करने के लिए ये रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा की जगह पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो दो इस तरह के हमको कसरे मिलेंगे जब ये ब्रैकेट यहां जाके इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ये स्टेप था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हम इसमें इसको चेंज करते हैं, रूपांतर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चली पाई जिसको कहते हैं, चली पाई यानी 1 माइनस, सी हियर 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कुछ नहीं, यानी हम एक ले सकते हैं इसको। ठीक है,
तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमको मिला, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये मिला, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर हमको मिला, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, तो ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहां पर जो दिया हुआ था कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, कॉट की जगह पर ये वैल्यू पुट करे, टैन की जगह पर ये वैल्यू पुट करे, 2 होने के बाद हमने इसको इधर मैं साइड में लेके बताता हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है सही से, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, वैसे x अगर सपोज करते, सपोज फर्ज करो कि सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो अगर ये x रहेगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना बेसिक समझेगा, ठीक है। तो वापस आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो जैसा है वैसा रखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का एक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये पहले स्टेप में हम रखेंगे, फिर उसके बाद यानी कि ये स्टेप में हम उसको 1 रखेंगे, इसकी वैल्यू अपॉन ये जैसा है वैसा रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कैसे है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा पहले से था, इंटू 1 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इधर ले आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। लेके आने के बाद क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और ये साइन थीटा है, यहाँ पर 2 है, साइन स्क्वायर रहने की वजह से साइन स्क्वायर यानी कि इसको बोलते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज वी गेट साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 होते हैं, इसमें से एक एक कट गया तो बच गया साइन थीटा, तो यहां पर आता है साइन थीटा 1, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, ये जैसे कि वैसा 1 अपॉन कॉस थीटा ये आ गया। तो हमारा बेसिकली बचा क्या कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, जो कि हमको साबित होता है कि ये आरएचएस है, जो हमको यही साबित करना था। हेंस इट इज प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही खेल हमको खेलना है, तो हमने खेल लिया, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर में सही से अगर हम करते हैं। इस चीज को समझ में आएगा, आई होप दिस यू गॉट दिस, आई थिंक इट इज ओके। तो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, आर यू रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। cot theta plus tan theta that is equal to cosec theta into sec theta. So how to solve this type of question? See here on your screen. Okay, तो ये दिया हुआ है cot theta plus tan theta is equal to cosec theta into sec theta, ये हमको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ये साबित करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो लेंगे पहले हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये हमने ले लिया। कॉट थीटा को जो फॉर्मूला प्रीवियस में बताया था, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, यहां पर दिया हुआ रेफरेंस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ये, और टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको हमने चेंज कर दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा था उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया। अब हमको 2 कसर मिलती है, ठीक है, 2 फ्रैक्शन पार्ट में आ गया, चली पाई करेंगे, तिरछा ضرب करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ओके। अच्छा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन जैसी की वैसी रखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा वी गेट साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसे कि वैसे रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा व्हाट वी गेट दैट इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू है, ये इस तरह से आता है, यहां पर बताया गया है। तो अगली स्टेप में इसको इस तरह से आएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी होती है, ये फॉर्मूला है, तो इसको समझना है अच्छे से और रखना है इसको, ठीक है। तो एक स्टेप आ गई तो दूसरी स्टेप आएगी, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा है वैसा रखना है। अब इसमें कुछ नहीं है, बस इसको सेपरेट करना है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से लिखना है। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो वो सेक थीटा होता है, और यही हमारा RHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू
सेक थीटा। अगदी सोपं चिल्लर प्रॉब्लेम होतं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में कि बस आपको क्या करना है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा ये है, इसको रखना है। नेक्स्ट स्टेप में इसका फॉर्मूला रखना है, कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा का फॉर्मूला रखो, टैन थीटा की जगह पर टैन थीटा का फॉर्मूला रखो। आइडेंटिटी मतलब जो लिख रहे हैं हम इसके अंदर में जो साइन है एडिशन की साइन है तो एडिशन रहेगा, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन रहेगा। यहाँ पर एडिशन है इसलिए एडिशन हम रख रहे हैं ये दो टर्म में, ठीक है। ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हासिल होता है हमको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये सिचुएशन चेंज हो गई इस तरह से। अब इसकी जगह पर क्या आएगा, ये स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 आएगा और ये जैसे के वैसा लिखेंगे क्योंकि हमको इसके दो टुकड़े करना है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू करना है इसको 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और इसका रेफरेंस यहां पर देना है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हमको देखना है, कम टाइम में देखना है, 1 घंटे में इसको क्लीन करना है हमको, ठीक है। ये मतलब कि पूरी की पूरी मश्क को इस 1 घंटे के अंदर में सॉल्व कर देना है। आधी हमने कर पाया, समझने की कोशिश की तो ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ आप भी जुड़ जाइए, मैच हो जाइए ताकि आपको ये सही लगेगा, ठीक है। तो ये 11th स्टैंडर्ड में भी कॉमनली ये क्वेश्चन आता है, 12th में भी ये आता है। 12th के बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो तो उनको पता होना चाहिए कि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। मैं तो इसको यूनिवर्सल क्वेश्चन कह दूंगा अगर मेरा बस चले तो। ये कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा, प्रूव दैट, ये आता ही है। तो इसको इस स्टेप में करना होता है कि बस बेसिकली रखो, इसको 2 मार्क्स के लिए होता है कि कॉट थीटा की कीमत कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 10th के लिए हो सकता है 3 मार्क्स के लिए, बट इसके लिए 12th के लिए तो ये 2 मार्क्स के लिए होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन की कीमत इधर रखेंगे। क्या किया हमने ओवरऑल, फर्स्ट हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, उसके अंदर में हमने फॉर्मूला पुटअप किया, इसका कॉट को देखा, कॉट का फॉर्मूला पुटअप किया, एडिशन साइन जैसी की वैसी यहां पर रखी, टैन थीटा की जगह पर उसका फॉर्मूला रखा, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नेक्स्ट स्टेप में लाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमको ये मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका क्या होता है, इसकी होल कीमत कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है, ये 1, तो ये 1 अपॉन ये जैसे कि वैसा रखा है, इसको कुछ भी तब्दील नहीं किया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारी खुद ब खुद बन गई 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट कर दिया तो हमको 2 अलग फॉर्मूले मिलेंगे कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यही हमारा RHS है, यही हमको साबित करना है, दूसरा कुछ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इस तरह से है। तो परेशान मत हो जाओ, एक एक स्टेप को आराम से देखो, एक स्टेप मिलेगी, दूसरी स्टेप खुद ब खुद मिल जाएगी। फॉर्मूले अगर याद है तो ध्यान के अंदर में आएगा, माइंड में आ जाएगा आपकी कि इसके बाद ये स्टेप यहाँ पर बैठेगी और बैठना ही चाहिए, ठीक है। तो मूविंग ऑन, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 6। अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। We have to show that 1 upon sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta। कैसे साबित करेंगे, see here, देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यही हमको खेल खेलना है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम एज इट इज पुट कर दिए, ठीक है, ये एज इट इज हो गया। अब यहाँ पे ये ट्रिक की क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, तो इसमें माइनस है तो हमको प्लस लेना है, ठीक है। यानी कि हमको क्या करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेना है, हम ले सकते हैं, ठीक है। ये हमको टिक करना है टैन थीटा, ठीक है। यहां पर माइनस है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब हमको इसको यहां पर समझ लो, ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इतना था हमारा सवाल। हमने क्या किया, इसके साथ एक ब्रैकेट जोड़ दी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेम टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को में लिया जा सकता है, जो कट हो जाएगा, इससे पहले के कई क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो ये सेम टर्म रहेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस
tan थीटा सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, 1/1 क्या होगा, 1/1 1 होता है, तो 1 हम इसमें ले सकते हैं, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा इस तरह से। तो इसको ये ट्रिक करनी पड़ती है कि न्यूमरेटर में माइनस साइन है, ये प्लस करके दोनों को रखना पड़ता है। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, जैसे x को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, x 1 जा x, तो ये पूरी ब्रैकेट ये जितनी भी दिख रही है, ये इतनी ब्रैकेट 1 जा, तो वो वही आएगा। लेकिन ठीक है, हमने इसको रख दिया। अब ये क्यों रखा, तो इससे हमको क्या हासिल होगा ये हम देखते हैं। 1 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, बट हम इसको कट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 इंटू करके मल्टीप्लीकेशन करके इसको रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां क्या होता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसको ट्रिक ये है कि a माइनस बी सपोज, ठीक है, और इंटू ए प्लस बी इस तरह से आता है, तो ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको ये हासिल करना है, क्योंकि जब हम ये हासिल कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमको 1 हो जाएगी। कैसे होगी मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो रहा है, यहां पर a क्या है, a है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू a, हमको समझना है इसको, tan थीटा इज इक्वल टू b। ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं हमको तसव्वुर करना पड़ेगा, इमेजिनेटिव, हमारी इमेजिनेशन अच्छी रहना चाहिए, ठीक है, इमेजिनेशन, ठीक है, जिसके अंदर में हम इमेजिनेशन में लेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला बैठ सकता है, बिठा देंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर हमने वही किया, सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये दो अलग अलग ब्रैकेट मिल गए, जिसको a माइनस बी a प्लस बी, समझ गया, a माइनस बी a प्लस बी, सेक थीटा को लिया a, tan थीटा को लिया b, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए क्या है, सेक स्क्वायर, ठीक है, बी क्या है, tan थीटा है, तो tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, ये इस तरह से आ गया। तो ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे से तो ये हमको रिजल्ट मिलता है, और ये तो न्यूमरेटर में है 1 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, जो है वो एज इट इज आएगा। तो हमको फाइनली कौन सी स्टेप मिली, ये स्टेप मिली, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सचेंज कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये होता है, ठीक है। तो ये 1 रखेंगे और ये ऊपर न्यूमरेटर के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, जैसे कैसा अपॉन 1, तो डिवाइडेड बाय 1 अगर होता है तो वो सेम रहता है, यानी कि एनीथिंग अपॉन डिवाइड बाय 1 इटसेल्फ। तो ये आता है सेक थीटा प्लस tan थीटा, जो कि हमको साबित करना था, ठीक है। तो ये RHS है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड, ये हमने साबित कर दिया माय लॉर्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा, इस तरह से आता है। तो इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। वापस से एक बार देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो हमने इसको यहां रखा, ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद 1 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, यानी ये ट्रिक को अपनाया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ब्रैकेट दिया, ये एक ब्रैकेट दिया, ये जो टोटल ब्रैकेट है जिसको मैं कट कर रहा हूं, ये ब्रैकेट दिया मैंने, ठीक है, दे दिया, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमको मिलता है, ठीक है, ये मिलता है। इसके बाद हम ये स्टेप पे आते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1, तो ये होता है सेक थीटा प्लस tan थीटा RHS, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं इसका आंसर दे दूंगा। और ये फॉर्मूला ये ध्यान में रखना कि a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो होप करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझा होगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और उसका सोल्यूशन हम लेते हैं। रेडी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस तरह से दिया हुआ बुक के अंदर में, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट गाइज अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो यहां पर एक मिस्टेक है, ठीक है, एक मिस्टेक है। वो क्या है, वो इस तरह से है कि यहां पर आना चाहिए था साइन थीटा, साइन की जगह पर सेक इसने ले लिया, तो ये कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से कन्वर्ट होगा। क्यों, ये सवाल इस तरह से है, इसको ऐसा अगर रहेगा तो ये गलती है, ये किताब की गलती है। कहते हैं ना, गलती से तजुर्बा, तजुर्बे से परफेक्शन। तो
ये सवाल लेकर के अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत सारी गलतियां होंगी तो उससे तजुर्बा आपको मिलेगा, जैसे मुझे मिला। ठीक है, 2-3 पेज सॉल्व करने के बाद समझ में आया कि यार इसकी वैल्यू तो बिल्कुल 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आ रही है। तो फिर इसकी जगह पर साइन रख कर देखते हैं सेक की जगह पर, तो ये फिर जवाब बैठ गया। ये गेस होता है, गेसिंग पावर हमको बढ़ाना पड़ता है, इसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन हमारी किताब में है, वेर एज इट शुड बी मस्ट एंड शुड बी साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अगर ऐसे भी सवाल होता है तो इसको हम कितनी देर तक इससे फाइट करेंगे, तो कौन सा इसके राइट हैंड साइड में आएगा वो हमको बाद में समझ में आएगा। बट ये हमारा अभी क्वेश्चन नहीं है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तब हमको मार्क्स क्रेडिट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो सही क्वेश्चन होता है ये, और ये है गलत क्वेश्चन। ठीक है, किताब में गलती से आ गया, इसको करेक्शन कर लें। ठीक है, 1.6 के अंदर में। तो बढ़ते हैं हम इसके आंसर की तरफ कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, ये इसकी गलती है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये गलती थी। अब हमने इसको दुरुस्त कर लिया। ठीक है, दुरुस्त सवाल या फिर करेक्ट क्वेश्चन, जिसको करेक्टेड मैं लिख देता हूं, बस करेक्टेड। ओके, बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। सॉल्यूशन लेना है हमको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हमको 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा करना है, और यही इसके इक्वल आता है। जब ये इक्वल आता है तो यहां पर सेक कैसे आएगा, यही चीज थी वो। ठीक है, क्योंकि अगर यहां से लेके निकलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे रिवर्स से। मुझे कैसे समझ में आया, मैंने रिवर्स डायरेक्शन से गया, तो रिवर्स डायरेक्शन से जाने के बाद इसको लेकर के सॉल्व करने पर समझ में आया कि यहाँ पर तो साइन आ रहा है, तो समझ में आ गया कि यहाँ पर साइन टू द पावर 4 थीटा होता है। ठीक है, इसको हम फिर कभी दूसरे में देखेंगे, अभी इस पर बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। साइन टू द पावर 4 है, इसको हम इस तरह से ट्रिक करते हैं कि साइन, देखो a टू द पावर 4 है, मैं इसको a स्क्वायर टू द पावर 2 ऐसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट टू द पावर 2, क्योंकि 2 टू द यानी इनका एडिशन होता है a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये मैं 8th स्टैंडर्ड में भी बच्चों को पढ़ा चुका हूं, ये वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं फॉर्मूले जो हमको 8वीं से भी ध्यान में रखना पड़ता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला था वो, a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो यहां पर क्या आ रहा है, साइन टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, तो 2 क्या होगा, m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 2 प्लस 2 4 होता है। तो ये 4 को हमने इस तरह से ट्रिकी करके रख दिया, ट्रिक कर दिया इसमें। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बना दिया, इसको साइन स्क्वायर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट टू द पावर 2 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट टू द पावर 2 या ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। सो वी गेट, इस तरह से इसको हम लिखते हैं, और इस तरह से ये फॉर्म को इस फॉर्म में तब्दील करते हैं। साइन की पावर 4 थी तो 2 करके ब्रैकेट की पावर 2 करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से हम इसको बदल देते हैं। ठीक है, ये फॉर्म बदल गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर आना चाहिए यहां पर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसे कैसे आ गया, अब ये दो चीजें कैसे हो गई, देखो यहां पर फॉर्मूला है जो मैं पहले बता रहा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो ब्रैकेट अगर होते हैं तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरह से यहां पर a साइन स्क्वायर थीटा को रखा गया a, ठीक है a, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या रखा गया b। तो यहां पर क्या हो गया, ये ब्रैकेट स्क्वायर है यानी कि इसका a स्क्वायर हो गया, और ये कॉस स्क्वायर रहने से ब्रैकेट का ये ब्रैकेट का स्क्वायर, देयरफॉर कॉस, ये इस तरह से इसका स्क्वायर, ये इस तरह से इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से आता है। ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इसमें। देखो साइन
बेसिकली स्टार्ट से, ठीक है। LHS इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये हम लिख दिए। इसका रूपांतर करें हमने साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट टू द पावर 2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। साइन टू द पावर 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि a टू द पावर m ब्रैकेट टू द पावर n ये इस तरह से आता है। ये 8वीं का कंसेप्ट जिसका क्लियर है उसको ये समझ में आएगा। अब मैं 8वीं में रिवर्स जाना नहीं चाहता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, अब इसको ए स्क्वायर, ये ए है, अगर हम इसको ए मान ले, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को बी, तो ए ब्रैकेट स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से होता है। तो यहां पर उसका रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी में रखते हैं हम। अब यहां इसको ए प्लस बी जो दिख रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, दैट इज इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। यही हमारा मकसद था, इसको 1 करवाएं ताकि हमको ये मिले, ये एक ब्रैकेट मिले, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक सोचना पड़ता है, बहुत दूर की सोचना पड़ता है, दूर की कौड़ी खेलना पड़ता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये होता है 1 इंटू दिस ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट जो है वो। तो ब्रैकेट में जो नंबर है जब माइनस आता है तो बहुत एहतियात करना पड़ता है, जहां पर नेगेटिविटी रहती है वहां पर बहुत एहतियात करना पड़ता है। इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है तो हमने यहां पर पुटअप किया, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को हमने छेड़छाड़ नहीं की। अब इसको हम ओपन द ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसको इस तरह से लिखना है, ये स्टेप को, और उसके बाद ये स्टेप में इसको खोल देना, ब्रैकेट ओपन करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस जैसे कि वैसा, कॉस स्क्वायर थीटा जैसे कि वैसा, तो ये स्टेप आ गई। 1 माइनस, सपोज कॉस स्क्वायर थीटा अगर x है और ये भी, तो ये भी x है, x और ये माइनस x कितना होगा, -2x, बट x है क्या, वो नहीं, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया, माइनस में नंबर है, माइनस माइनस -1 क्या होता है, -2 कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। तो यही हमारा RHS था। तो मैं रिवर्स डायरेक्शन में गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पुटअप किया इस तरह से, तो फिर इसके बाद ये वैल्यू आ जाती है इसमें पुटअप करने के बाद, ठीक है। इसको इस तरह से, तो इसका सोल्यूशन आता है ये इस तरह से। ऐसा रिवर्स में हम जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं इसका आंसर इस तरह से मिलता है कि ये वैल्यूज हमको मिलती हैं, ना कि हमको यहाँ पर सेक टू द पावर 4 मिलता है, बल्कि यहाँ पर साइन टू द पावर 4 थीटा मिल जाता है। तो कभी कभी अगर सपोज आप एग्जाम में इस तरह के सवालात कर रहे हैं और आपको आ गया सेक थीटा या कुछ गलत सवाल आ गया, तो क्या करना है, आपने करना है सवाल हल। आपको लगता है कि नहीं यार, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मसावी नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, तो यहां से रिवर्स स्टेप से जाकर देखना चाहिए कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, इसको हम ऐसा रख सकते हैं। ये इतनी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद रिवर्स सोचने की हमको हैबिट पड़ती है। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में सोच सकते हैं, जैसे ऊपर से सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप आते हैं हम, ठीक है, तो उसी तरह से नीचे से ऊपर भी सोचने की हमारी एक कैपेसिटी तैयार होती है। तो बाय डायरेक्शन हमारी थिंकिंग होना चाहिए, बाय डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, बल्कि हर डायरेक्शन में होनी चाहिए हमारी थिंकिंग, तभी जाके हम पूरे खेल को समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको जरूरत नहीं है, बस इतना सा कोशिश करो कि जितना आपसे बन सकता है उतना कोशिश करो। नहीं होता है तो बाय चांस ऐसे कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं आते, और अगर हो भी जाता है तो आपको क्रेडिट हो जाता है। ऐसे सवाल के साथ उलझना नहीं है पेपर के अंदर में, याद रहे ये बात अच्छी तरह से। जब आप बोर्ड का पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, इवन आपके सेमेस्टर का पेपर देते हैं आप, तो इस तरह से अगर कोई गलती आ जाए बाय मिस्टेक या फिर बाय द पर्पसफुली अगर हम लोग भी रख देते हैं कि चलो देखते हैं, बच्चों को चेक करते हैं, अगर रॉन्ग रख के तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरह अगर हम करेंगे तो हमको देखना होता है कि आपका अप्रोच कैसा है, ठीक है। आप इसमें कितना टाइम पास करते हैं, हमको टाइम 2 घंटा दिया गया था, आप एक सवाल खेलते बैठ गए और उसके अंदर में पूरा आपका 1 घंटा जाया होगा, तो बाकी का पेपर कौन करेगा हल।
तो हमको क्या करना है, जो आसान है, इजी टू हार्ड, ठीक है, इजी टू हार्ड की तरफ जाना है। जो मुश्किल है उसको पहले नहीं, जो आसान है उसको पहले और हार्ड जो है उसको बाद में। तो जो हजम नहीं हो रहा उसको खाने का भी नहीं, ठीक है, उसको छोड़ देना है, उसको लास्ट में। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी स्किल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी पेपर लिखते हैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलें, ठीक है। और इस तरह की खिचड़ी ना पकाएं, मैं जो कर रहा हूँ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। साफ सुथरा लिखें, जैसे पहली बार होता है वो साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ठीक है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए होता है, मैथमेटिक्स के टीचर ये करते ही हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec थीटा प्लस tan theta is equal to cos theta upon 1 minus sin theta. We have to prove the question number 8, that is sec theta plus tan theta is equal to cos theta upon 1 minus sin theta. How to prove this? See here. Okay, see, this is, इस तरह से आपका साफ सुथरा आंसर होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में sec थीटा प्लस tan थीटा है, ठीक है। sec थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos थीटा, ये मेनी टाइम्स बता चुका हूं। tan थीटा को क्या लिखेंगे, अब तुमको खुद बोलने आना चाहिए। tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा ले सकते हैं, ठीक है। ये ले लिया, इसका रेफरेंस यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और देखो, जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है, यानी कि जो नसब नुमा होता है, जो नीचे होता है, जो एक जैसा है, तो ऊपर के जो नंबर है उनकी एडिशन हो जाती है और उसको जैसे कि वैसा रखा जाता है, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा ये आ गया अपॉन कॉस थीटा, तो ये इस तरह से आता है। ये बेसिक रूल है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर के अंदर एडिशन हो जाती है और डिनोमिनेटर एक ही टाइम लिया जाता है, ठीक है। या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तब भी जवाब यही आएगा, इसको करके देख सकते हैं आप, इट इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। और ना आए जवाब तो कमेंट कर देना, बताना, फिर उसको मैं खुलासा करूंगा, उसके लिए एक शॉर्ट बना दूंगा, ठीक है। ठीक है, इसके यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, ये है प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेसिकली दो चीजें हैं यहाँ पर, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। पीस ऑफ माइंड से अगर देखेंगे, प्लस साइन है, साइन थीटा है, हमको क्या करना है, इस न्यूमरेटर का फायदा उठाना है। यही ट्रिक है अपनी, कि 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस साइन थीटा विथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो दोनों को। तो ये हमारा ब्रैकेट जैसे कि वैसा है, इसको अगर इंटू 1 करेंगे हम, ठीक है, तो यही ब्रैकेट आएगा हमारा, ठीक है। तो 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगर ये कट गया तो 1 आता है, लेकिन हमको काटना नहीं है, रखना है इसको। तो ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, जैसे कि a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आता है। इसी तरह से इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, और ये अलग से होगा। कैसे होगा इसको यहां पर बताया गया। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 1 माइनस साइन थीटा विथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम टर्म से, सिर्फ साइन के डिफरेंस से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसमें कुछ फर्क नहीं होता, ये लाना है, ये ट्रिक करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, वी गेट देयरफॉर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया फॉर्मूले के जरिए से, और ये बच गया कॉस थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये आ गया इंटू कॉस थीटा, जो डिनोमिनेटर में है जैसा एज इट इज उसको रखेंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सो दैट वो डिनोमिनेटर के अंदर में जो कॉस थीटा है वो कट जाएगा उससे, तो कॉस थीटा कट गया, दोनों भी सेम टर्म थे, गेट कैंसिल। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये हमको मिल गया, जो कि हमारा RHS है, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर वी प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। समझ, होप करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इतने सारे सवाल हल करके दिया हूं, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ tan थीटा इज प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2। ये दिया हुआ है, ये शो करना है। कैसे करेंगे, लेट्स सी यार, ठीक है। इसको तो छोटे ही पेज पे मैं इसको शो कर दूंगा। तो देखो इस तरह से, पहले हमको दिया गया है, इफ दिस इज गिवन देन शो दैट दिस।
हाउ इट इज। सोल्यूशन में लिखना है, पहले जो दिया गया है उसको लेना है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू गिवन, ये दिया हुआ है, पहले स्टेप लिखकर गिवन इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करना है स्क्वायर यानी इसकी ब्रैकेट लेना है, तो यहाँ ब्रैकेट ले लिया गया, दूसरा कुछ नहीं, 2 का स्क्वायर यानी ये होता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिखना है फर्स्ट, इसके बाद देखो ये इसका चेंज होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 स्क्वायर यानी 4। ये कैसे आया ये स्टेप, ये सबसे मेन है, ये आया इस फॉर्मूले से, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें हम इसको a मानते हैं, इस पार्ट को b मानते हैं, ठीक है। ये जिसको समझेगा उसको ये पूरा परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ये tan थीटा है जिसको हम a ले रहे हैं, 1/tan थीटा को b ले रहे हैं, दो पार्ट है, तो a प्लस बी यानी a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर आ गया, ठीक है, 2 टाइम्स यानी 2 आ गया, a क्या ले रहे हैं हम tan थीटा ले रहे हैं और b क्या ले रहे हैं 1/tan थीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1/tan स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, इतना ही रखना है, 2 स्क्वायर यानी ये, ठीक है 4। तो ये कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से आया, बेसिक उसका यहाँ पर है, इसकी बुनियाद इसकी जड़ यहाँ पर है, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा ये प्लस 2 इंटू ये tan गेट कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अच्छे से देखना इसको, tan स्क्वायर थीटा ये था जैसे कि वैसे हम रखे प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये 2 है, यहां से निकल के बस इधर माइनस में जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर जैसे कि वैसा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यही हमको शो करना था, दूसरा कुछ नहीं, हैंस इट इज शोन, यही हमको दिखाना था, हमने दिखा दिया। बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ, तो बढ़ते हैं आगे के सवाल की और यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, आई थिंक इट इज सॉल्व, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, हमको क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, राइट। देखो इतना कुछ समझा रहा हूं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू sin a इंटू cos a, ये हमको प्रूव करना है। इतना बड़ा सवाल देखने के बाद यार क्या ही हम कहें इसे, क्या ही कहें, ठीक है। तो फिर भी जो कहना है वो तो कहना ही पड़ेगा। ऐसे टाइम पे तो मुझे शेर भी याद आता है यार कि जलाकर कश्तियां सारी, यानी मोटिवेशन होता है, मुझे एक तरह का मोटिवेशन मिलता है। मैथमेटिक्स जो सॉल्व करते हैं ना हार्ड प्रॉब्लम को, उनको फुल ऑफ मोटिवेशन रहना पड़ता है। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, इस सवाल को देखो और बोलो यार ये तो चैलेंज है, तुझे तो मैं हल करूंगा, कैसे करूंगा। तो अपने आप को एक शेर बोल के अपने आप में मोटिवेशन पैदा करना, अपने आप को चार्ज करना, कैसे करना देखो, जलाकर कश्तियां सारी चला हूं कुफ्र से लड़ने, कभी इन रास्तों से फिर कभी वापस ना आऊंगा, मेरे जज्बों की हिद्दत से पिघल जाएंगी जंजीरें। यानी इतना स्ट्रगल करूंगा, इसको इतना सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि हिद्दत यानी गर्मी, ठीक है, शिद्दत, हिद्दत गर्मी को कहते हैं, ठीक है। तो मेरे जज्बों की हिद्दत से पिघल जाएंगी जंजीरें, ये बाजी जीत कर मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा। यानी दुनिया तो अपने में ही बसी हुई है, बट इतना ये कहना है कि ये सवाल को तो मैं हल करके ही दिखाऊंगा यार। तो कोई शेर अच्छा सा लगे कहीं व्हाट्सएप पे या नेट पर इधर उधर लेना और उससे सेल्फ मोटिवेटेड होना सीखना है, ठीक है। जैसे कभी आपने देखा होगा आईपीएस ऑफिसर विश्वास नांगरे पाटिल साहब, जो अपने कई भाषण में वो ये कहते हैं, एक भाषण में उन्होंने कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जापानी मानसाची आत्मकथा, उसमें उन्होंने बहुत सही से कहा था, क्या कहा था कि वो पोयम ही कुछ इतनी अच्छी है, कभी सुनना, उन्हीं के क्लिप में सुनना बड़ा मजा आएगा। ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, जापानी मानसाची आत्मकथा, द पोयम ऑफ ला मांचा उन्होंने कहा था। तो मला ते स्वप्न बघायचं आहे जे शक्यच नाही, मुझे वो ख्वाब देखना है जो मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, ठीक है, ठीक है, वो ख्वाब मुझे देखना है, ठीक है। और आई हैव टू रन वेयर ब्रेव डू नॉट गो, मुझे उस डायरेक्शन में दौड़ना है जिस
डायरेक्शन में, यानी ताकतवर, ब्रेव इंसान, ब्रेव बहादुर शख्स जाने की हिम्मत नहीं करते जिस दिशा में मुझे उस दिशा में भागना है. मला तिकडं धावायचं आहे जिथं धाडसी माणसं जाण्याचा प्रयत्न सुद्धा करत नाही, ऐसा उन्होंने कहा था. बहुत अच्छा लगा था. तो उनका लेक्चर देखना, मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है, तो मैं ये इसलिए कह रहा था कि हमने यहां से स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 4 से और 8 तक आ गए, 9 तक आ गए. इतने क्वेश्चन में तो अच्छा खासा इंसान भी बोर हो जाएगा. तो मैंने समझा कि तुम्हारा थोड़ा सा दिलजोई करता चलूं. तो आगे बढ़ते हैं. पोएटिक लैंग्वेज तो अपनी जगह रही. ठीक है, बढ़ते हैं. मैथमेटिक्स भी वैसे पोएट्री से कम नहीं है. आप किताबें पढ़ें, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये भी पोएट्री में लिखी गई है. ठीक है, फिर कभी इसका वीडियो बना के बताऊंगा मैं कि किस तरह से कहां पर पोएटिक्स में लिखी गई है. ठीक है, और जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको मालूम है. ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी तरफ. क्वेश्चन नंबर 10, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं देखो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको. सो हियर ऑन योर स्क्रीन, तो गेट सेट रेडी, लेट्स गो. सोल्यूशन. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है tan a अपॉन इन द ब्रैकेट. ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ. थक गए हैं, थोड़ी देर स्टॉप करो, इसको साइड में रखो. हाँ, ये एक सजेशन है, साइड में रख सकते हैं आप, यूट्यूब पर है, कभी भी देख सकते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर, ये इस तरह से है. दैट इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस ए. तो ये हमको प्रूव करना है. ये साइन a और कॉस a में कैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमको लेना है पहले ये पार्ट. ठीक है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, ये tan स्क्वायर a, इसको ऐसा रखा गया खास. ठीक है, इसको समझना है, ये आइडेंटिटी है, इसको समझना है. ये दोनों पे ध्यान अगर देंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, समझ में आएगा कि ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है. तो इसको हमने LHS में ले लिया जैसा कि वैसा. ठीक है, इसके बाद इसकी जगह पर ये tan a जैसा कि वैसा हमने यहां पर पुटअप कर दिया. ये cot a यहां पर पुटअप कर दिया. ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से. ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा. बट ब्रैकेट स्क्वायर है, इसको मत भूलो, इसको जैसे कि वैसा रखो. यानी ये स्क्वायर अपनी जगह पर है, sec स्क्वायर a, और ये स्क्वायर अपनी जगह है. ठीक है, हर चीज को बारीकी से छान करके देखना है, फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहना है. प्लस साइन है, प्लस लिखना है. कॉट को भी जैसे कि वैसे रखेंगे, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए. तो ये आता है. ठीक है, और ब्रैकेट स्क्वायर है, ब्रैकेट स्क्वायर रखेंगे और उसका रेफरेंस यहां पर देंगे. ठीक है, तो यहां तक समझ में आया, होप सो. tan a अपॉन sec टू द पावर 2 था, ये 2 है, इस तरह से 4 हो जाएगा, इसलिए ये 4 हो गया. ठीक है, प्लस कॉट a अपॉन इधर भी सिमिलरली कोसेक स्क्वायर था, और ये ब्रैकेट स्क्वायर था, यहां पर इसकी पावर 4 हो जाएगी, कोसेक टू द पावर 4 a, या कोसेक a टू द पावर 4. ठीक है, इस तरह से हम इसको ले लेंगे, ये सिंपल है. इसके बाद क्या ट्रिक है, इसको डिवाइड में रखो, जैसे tan a डिवाइडेड बाय. ठीक है, इस नोटेशन में लिखो. क्यों, क्योंकि इसको अलग से हमको ब्रैकेट में लेना है. प्लस ये प्लस, फिर ये भी डिवाइड में रखो. बस इसको, ये जो डिवाइड का है तो सिंबल यहां पर रख के बताओ कि हाँ ये डिवाइड है. ठीक है, ये स्टेप कुछ नहीं है, बल्कि ये स्टेप के बाद डायरेक्ट आप इस पे भी जंप कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो तो. ठीक है, tan की जगह पर हम लिखना है हमको साइन a अपॉन कॉस a. ठीक है, यहां डिवाइड इसलिए लिखते हैं ताकि वाज़ेह तौर पर हमको समझ में आए, क्लियर एंड कट हमको समझ में आए. ठीक है, देन tan a हो गया डिवाइडेड बाय सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉस में. पावर 4 है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन दें, तवज्जो दे, ध्यान दे. 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4 a, ये रखेंगे. प्लस सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये कॉट है, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन. कोसेक कन्वर्ट होगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल साइन है. ठीक है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, और कॉस किसका है, सेक का. ठीक है, ये है रेसिप्रोकल. तो इसमें इसका 4, जब यहां पर 4 इसका पावर है तो यहां भी पावर 4 ही आना चाहिए, इस तरह से. तो ये दो ब्रैकेट इस तरह से आ गए. हमको लिखना है इधर tan a इज इक्वल टू. ठीक है, tan a इज इक्वल टू जो हमने लिया वो उसका रेफरेंस यहां पर हमको देना है. कॉट क्या है वो हमको इधर रेफरेंस देना है. ठीक है, इसके बाद हमको काट छाट करना है. क्या करना है देखेंगे हम इसको अभी. तो ये समझ में आ गया अच्छे से. तो आगे बढ़ते हैं, काट छाट कैसे करेंगे, यानी कि देखो इसको.
ठीक है। यहां पर साइन ए है तो साइन ए हम लिखेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे, ठीक है। अपॉन कॉस ए, ये साइन ए अपॉन कॉस ए जैसे कि वैसे लिखेंगे, इनटू जब इसका कॉस टू द पावर 4 है, ठीक है, डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो कॉस टू द पावर 4 ए हो जाएगा। जैसे कि अगर साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4 ए है, जब ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, इनटू हो जाएगा, तो ये इनटू ऐसे आया, और कॉस टू द पावर 4 ए अपॉन 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 इस तरह से ये आ गया, यानी ये पूरी ब्रैकेट आ गई। सेम इसी तरह से ये भी ब्रैकेट आ गई है, ठीक है। कॉस ए जैसा है वैसा लिखेंगे, अपॉन साइन ए लिखेंगे, इनटू साइन टू द साइन ऊपर जाएगा, साइन टू द पावर 4 ए इंटू अपॉन 1, ठीक है, अपॉन 1, ठीक है, अपॉन 1 ये लिखना है। अब हम कॉस टू द पावर 4 है, ये कॉस टू द पावर 4 है यहाँ पर, इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे और कॉस क्यूब ए लिखेंगे, क्योंकि ये एक जैसे न्यूमरेटर में रहेंगे तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में सेम टर्म गेट कैंसल। इसी तरह साइन को भी करेंगे, ठीक है। तो एक जैसा टर्म कट गया, साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस, तो यहाँ पर प्लस है, इसको ध्यान में रखें, प्लस सेकेंड ब्रैकेट कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए, ये हमको मिलेगा। ये समझने की कोशिश करें इस तरह से, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ सकते हैं। साइन ए ये है इंटू कॉस क्यूब ए प्लस, ये प्लस साइन हमको जो मिला वो प्लस कॉस ए, ये कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए, ठीक है। ये दो ब्रैकेट हमको मिल गए। अब हमको क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस ए, इधर भी साइन ए है और इधर भी साइन क्यूब है, तो देखो यहां पर से हम साइन ए ऐसे लिखेंगे इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से तो इसमें क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर, ये बचेगा कॉस स्क्वायर, तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। और इसमें से कॉस ए, ये है कॉस ए इंटू साइन क्यूब है, साइन क्यूब ए है तो साइन लेंगे पहले, ए इंटू साइन स्क्वायर ए करेंगे, ठीक है। सो दैट सेम टर्म, जैसे साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये सेम टर्म्स इधर से भी ये बाहर आ जाएगा, ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। कॉमन टर्म को बाहर लेंगे, अनकॉमन जो है उसको दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस, तो ये प्लस मैं जो बता रहा हूं बार बार, ये प्लस आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए, तो ये हमको लेना था, ये हमारा एम था। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमको इसे बनाना था, हमने इसे बना दिया। इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ये होती है, तो बच जाता है क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। कैसे होता है, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 हम लिखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इधर रेफरेंस में दे देना, ठीक है। तो ये साइन ए इंटू कॉस ए, यही हमारा RHS है, हमको यही साबित करना था, यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो इतना बड़ा लगता है ये जिन भूत की तरह, लेकिन इस जैसे सवाल को हल करने के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि मेरे जज्बों की हिद्दत से अपने आप का जज्बा बढ़ाना पड़ता है। पिघल जाएंगी ऐसी जंजीरें और मैं ये बाजी तो जीत के दिखाऊंगा भैया, मैं जीत के दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो अपने आप से कहना पड़ता है ये, ठीक है। इसको अदरवाइज ना लें, समझें इसको और आगे बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ जो हमें करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec टू द पावर 4a इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है। ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। ये हार्ड लगने लगेगा, लेकिन इसको इजी करना, खुद को रिचार्ज करना, ठीक है, सेल्फ चार्ज करना सही से, और फिर आगे बढ़ना। तो ये इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी भी है और थोड़ा लेंथी भी है। देखें, इसको समझने की कोशिश करें। सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लेते हैं पहले, जो यहां तक दिया हुआ है, और राइट हैंड में सिर्फ 1 है, तो एज इट इज इसको पहले लेते हैं और sec टू द पावर 4a एज इट इज लिखते हैं। ये जैसा है वैसा लिखेंगे क्यों, और मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1 करेंगे, sec टू द पावर 4a इंटू 1, तो आया sec टू द पावर 4a माइनस sec टू द पावर 4a इंटू साइन टू द पावर 4a, ये आ गया इधर, ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर a।
तो ये स्टेप जाके इस तरह से हुई, क्या हुआ, इससे sec टू द पावर 4a से हमने मल्टीप्लाई किया इस होल ब्रैकेट को 1 को किया, तो ये पार्ट मिल गया, और माइनस इन दोनों को जैसे के वैसे रखा, ये और ये पार्ट उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों के बीच में इनटू है, ठीक है। और -2 tan स्क्वायर ए, इसके साथ अभी तक हमने कुछ नहीं किया। आप सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, ठीक है, रेसिप्रोकल है, सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल है। यहाँ साइन टू द पावर 4a एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको आया 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a माइनस 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a। माइनस साइन है, माइनस रखेंगे, जरा भी अगर प्लस करते हैं आंसर गलत आ सकता है। ये इनटू है, डॉट यानी इनटू है, साइन टू द पावर 4, साइन टू द पावर 4 अगर है तो जैसा कि वैसा हम रखेंगे, माइनस 2 इंटू टैन का क्या होता है फॉर्मूला, साइन अपॉन कॉस आता है, स्क्वायर है, स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये इस तरह से हो गया। तो ये पूरी की पूरी इस तरह से चेंज हो गई। इसको वापस से देखो, 2 बार देखो, समझेगा। और यहाँ पर उसका रेफरेंस दे दो, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर हम रखते हैं और करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a माइनस, ठीक है, ये साइन टू द पावर 4a इंटू 1 था, तो इसको यहां पर साइन टू द पावर 4a आ जाएगा अपॉन कॉस टू द पावर 4a। होप यू अंडरस्टैंड दिस, माइनस अब ये जो पार्ट है जैसा कि वैसा यहां से उठाया, यहां रखा, कॉपी कट एंड पेस्ट, सेम टू सेम, ठीक है, आईटी के हिसाब से, ठीक है। 1 माइनस, देखो अब डिनोमिनेटर में यहां भी cos टू द पावर 4 है, cos टू द पावर 4 है, माइनस है, तो हमको न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन टू द पावर 4a एज इट इज लिखना है, और नीचे डिनोमिनेटर में cos टू द पावर 4 लिखना है। दोनों एक जैसे हों तो इस तरह से इसको माइनस करते हैं। माइनस इसको यहां से उठाया, ठीक इधर पेस्ट कर दिया, कट, कॉपी कट पेस्ट, ठीक है, जैसा था वैसा कॉपी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये स्टेप थोड़ा ट्रिकी है, इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस, इसको साइन टू द पावर 4 है तो इसको जैसे कि 2 टू द पावर, अगर हम 2 स्क्वायर लिखते हैं, और या फिर 2 टू द पावर 4 अगर है, 2 टू द पावर 4 है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 टू द पावर 2 इंटू द ब्रैकेट टू द पावर 2, यानी कि 2 टू द पावर 2 यानी 4 हो गया, 4 टू द पावर 2 कितना आता है, 16। तो 2 का हम देखेंगे 4 टाइम्स इसको लिखते हैं, कितना आता है, 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो 16 हो गया, ठीक इसी तरह से। या फिर 8 टू द पावर 2 ब्रैकेट टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 8 टू द पावर 4, तो 8 टू द साइन टू द पावर 4 था, साइन टू द पावर 2 करके ब्रैकेट टू द पावर 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस टू द पावर 4, इसको जैसा कि वैसा, ठीक है। जो टर्म हमको यूज नहीं करने का उसको जैसे कि वैसे कॉपी करके रखेंगे। इस टर्म के अंदर में थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये ट्रिक बहुत जरूरी है, यही लॉजिक होता है जो ट्रिक कहलाता है। कहाँ कौन से टाइम पर कब कौन सी सिचुएशन में कौन सी ट्रिक यूज करना है, यही मैथमेटिक्स का कमाल है। इसलिए मैथमेटिक्स सबको समझता नहीं, सबके बस की बात नहीं है, आर्ट्स वालों के बस की बात नहीं है, साइंस और साइंस के बच्चों की बात है, ठीक है, साइंस फील्ड वालों की है। -2 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर किसी का एटीट्यूड हो मैथमेटिकल तो मैं ये कहूंगा कि वो इस तरह से कर सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वरना आर्ट्स वाले मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे, बोले ये क्या बोल दिए सर ने, ठीक है। समझाने के लिए बोलना पड़ता है यार, स्टूडेंट को समझो, आप लोग जो भी देख रहे हैं। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये जैसा कि वैसा रखेंगे जो यहां पर है, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कैसे आया, ये इस तरह से आया कि यहां पर उसका रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये बार बार हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, हम शुरू से देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 4 था, इसको हमने स्क्वायर किया, तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से लेंगे, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको ए पकड़ेंगे, ए को 1 को ए और साइन स्क्वायर ए को बी पकड़ेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आने के बाद, सॉरी इस तरह से नहीं, 1 स्क्वायर इंटू
ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऐसे लेंगे। देयरफॉर ये इस तरह से फॉर्मूला होगा, तो एक ब्रैकेट इस तरह से आएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूं ये समझा होगा। नहीं समझा वापस से बताऊं, ठीक है, देखो 1 माइनस साइन टू द पावर 4 ए, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये ब्रैकेट स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये 1 है, इसको हम क्या करते हैं 1 स्क्वायर बनाते हैं माइनस ये साइन स्क्वायर ए इसका ब्रैकेट, तो ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्या है 1 है, 1 माइनस या 1 प्लस है ना, पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि बी क्या है साइन स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये इस तरह से आता है। ये चीज हमको समझ के रखना है, ये चीज यहां से यहां पर आई और ये जैसा है वैसा ही यहां से उठाए, कॉपी किए, पेस्ट किए, ये जो पूरा का पूरा टर्म है वैसे के वैसे रखे उसको, कोई इसके अंदर में रद्दो बदल नहीं, यानी कि तब्दीली नहीं, नो चेंज, जैसा है एज इट इज पुट अप, ठीक है। इसके बाद यहां पर जब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहले हम इसको देखें 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो रहा है कि ये देखो फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां था हमारा क्या था, यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस, तो देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये यहां से उठकर यहां जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसलिए कॉस थीटा की जगह यहाँ ए है इसलिए कॉस स्क्वायर ए आया, ठीक है। ये एक ब्रैकेट जैसे कि जैसा था वैसा लिखे, इस ब्रैकेट की जगह पर ये आ गया। और कॉस टू द पावर 4 है, अब इसको कॉपी कट पेस्ट करने के बजाय कॉस 4 पावर को हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सो दैट ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कट जाए, ठीक है। और माइनस ये एज इट इज हमको लिखना है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां से क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं, कैसे आ रहा है देखो यहां। अब यहां पर ये डायरेक्ट कैसे आया, यानी कि मैंने 2-3 स्टेप हज़फ करके यानी कट करके डायरेक्ट लिखा है आंसर। इसका टोटल जब इससे करते हैं तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी ये तो कॉस स्क्वायर ए है, लेकिन इसको जब इससे माइनस करते हैं और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेकर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कॉस स्क्वायर ए आता है। कैसे आता है वो इधर देखेंगे, ठीक है, ये स्टेप में देखेंगे, इसलिए मैंने इधर इसको बना के रखा। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हो गया अपॉन, क्योंकि यहां भी कॉस स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और यहां भी कॉस स्क्वायर ए है, तो एक मर्तबा ये लिखेंगे और ये दोनों का माइनस में इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये यहां पर पुटअप करेंगे, ये माइनस यहां और ये 2 साइन ए अब काम में आएगा, ठीक है। शुरू से लेके यहां से वो यहां पर काम में आ रहा है, तो जिसको जहां काम में लेना है वहीं पे लेंगे, अननेसेसरी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए में से एक साइन स्क्वायर ए चला गया तो बचा कितना, एक साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए जैसे कि वैसा, तो कॉस स्क्वायर यहां भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कट गया, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हमको 1 मिलता है, RHS है, ठीक है। ये समझ में आना जरूरी है और ये पूरा समझ में आना जरूरी है, तब जाके आप ये स्टेप लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर आपको लिखना है तो ठीक है, यहां से आ जाओ इस स्टेप पे, इसके बाद यहां चले जाओ, ठीक है, फिर आसान हो जाएगा, ये स्टेप की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बच्चे अगर ये स्टेप छोड़ करके ये डायरेक्ट लिखते हैं तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल रह गया है हमारा, वक्त तो हो चुका है फिर भी लास्ट हम करके इसको स्टॉप करेंगे, ओके। फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। इसको कैसे करना है, ठीक है। ये भी बहुत टफ जाता है बहुत सारे बच्चों को, इसमें सिर्फ और सिर्फ
एक चीज समझना है, उसके बाद वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं इसको, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड लेने के बजाय ये टोटली डिफरेंट टाइप से हम जा रहे हैं इसको। देखो, एक आइडेंटिटी का यहां पर हमने इस्तेमाल किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, क्वेश्चन अपनी जगह है, इसको ये दिखाने के लिए हमने इस्तेमाल किया आइडेंटिटी, ना इसका इस्तेमाल किया ना इसको साबित किया। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेते थे, बट हमने स्टार्ट किया अभी एक नए लॉजिक से जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, जो हमारी निस्बत है। ठीक है, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मूला फ्रॉम 32 फॉर्मूलाज विच आई सेड अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर। सो ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक ये पार्ट जैसे कि वैसे यहां रखेंगे, ये प्लस है, इधर से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब tan स्क्वायर को हम लिखेंगे tan थीटा इंटू tan थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। मेनी टाइम्स मैं बता चुका हूं। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, ये इस तरह से हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से तरतीब में आया। ठीक है, इसको देख लेना जाके, ये फॉर्मूला क्या है वापस से देख लेना। तो ये सिचुएशन इस तरह आ गई, tan स्क्वायर था तो tan थीटा इंटू tan थीटा ये आ गया, और ये दोनों का दो ब्रैकेट अलग से बन गए। और tan थीटा, ये tan थीटा जैसे कि वैसे रखेंगे अपॉन ये ब्रैकेट को उठाकर यहां से मल्टीप्लिकेशन में है, यहां से जाएगा डिवीजन में, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। एक ब्रैकेट इधर आ गया, दूसरा ये जैसे कि वैसा था सेक थीटा प्लस 1, इसको एज इट इज रखेंगे। यहाँ का ये जो tan थीटा है इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और इधर से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह से ये स्टेप पूरी फॉर्म हो गई। इसको समझ गए तो उसके बाद उर्दू वाले ये देखना कि मसावी निस्बतों के मसले की रूह से, ठीक है, ये मसावी निस्बतों का मसला यानी बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस। ठीक है, हम रखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये हमारा पूरा, ठीक है, ये जैसा कि वैसा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। तो लिहाजा ये क्वेश्चन इस तरह से साबित होता है बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस। ठीक है, तो जल्दी इसको मैंने सम अप कर दिया। अगर इसके बारे में भी कुछ क्यूरी रहेगी तो आप बाद में पूछ सकते हैं। टाइम 1 घंटा हो चुका है हमारा और हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, और इस तरह से ये हमारी पूरी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मुकम्मल होती है। इसके बाद हम देखेंगे अगले पीरियड में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? तो ठीक है गाइज, ये पूरे सवालात फिर एक बार बता रहा हूँ कि कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया है। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझाने के दौरान नहीं समझा तो मेरी ये मुद्दबाना गुजारिश है कि आप मुझे बताएं कि सर ये नहीं समझा, तो मैं उस पर कुछ सेपरेट वीडियो बना सकूं। और दौरान तदरीस ड्यूरिंग लेक्चर अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है बोलने में किसी चीज़ में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इस बात की। और मेरी इस्लाह कर सकते हैं आप। ठीक है, जो भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दें ताकि मेरी अगर इम्प्रूवमेंट होना बाकी है तो वो हो जाए। ठीक है, होप कि आप स्टूडेंट्स को, तमाम स्टूडेंट को ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे का जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये इसको हम बाद में देखें। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हम यहीं पर स्टॉप होते हैं। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।